Okay. Hello, hello, hello. Okay, listen. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello. Okay. Listen. Western bridge clear, right? Meter bridge clear. આ ન્યુમેરિકલ થઈ ગયો હશે. ક્લિયર થઈ ગયો હશે, કોઈ ડાઉટ નહીં હોય આમાં. રિશ્વન દે અવાજ. હરીશ કેમ એબસન્ટ છે? પેલા બે તો બહાર છે ને. ચલો દેખો સમજ લો. પેલો બંધ કરી દે, પંખો બંધ કરી દે, હમણાં ઠંડક થશે. તો potentiometer. This is very very tough topic, potentiometer. Okay. And then we will finish exercise today. Exercise. Our target is to finish exercise today. જેટલી પતે એટલી પતાઈશું આપણે આજે. બરાબર? ઓકે. જો potentiometer. જ્યારે when I taught you that EMF of cell, EMF of cell or battery, એ કોન્સેપ્ટ આના માટે ક્લિયર હોવો જોઈએ. કોના માટે? પોટેન્શિયોમીટર માટે. તમારો EMF ઓફ જે સેલ છે એનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. તો વોટ ઇઝ ધેટ EMF ઓફ સેલ? એક ફોર્મ્યુલા હતો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ E માઇનસ IR. આ ફોર્મ્યુલા અને આખો જ કોન્સેપ્ટ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવો જોઈએ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કોન્સેપ્ટ, ધીસ કોન્સેપ્ટ પોટેન્શિયોમીટર, V ઇઝ ઇક્વલ ટુ E માઇનસ IR. આ ફોર્મ્યુલાની અંદર જે આ V છે એ શું છે? ટર્મિનલ વોલ્ટેજ. શું છે? ટર્મિનલ વોલ્ટેજ. This V is terminal voltage. What is this E? EMF. Agree? What is this I? Current. And R is internal resistance of the cell. આ વસ્તુ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ, એકદમ ક્લિયર હોવી જોઈએ. બરાબર છે? તો જ આ કોન્સેપ્ટ ખબર પડશે, બાકી નહીં પડે. બરાબર? આ તો જ ખબર પડશે પોટેન્શિયોમીટર શું છે. ઓકે. હવે જો નોર્મલી સ્ટુડન્ટ્સને હાર્ડ લાગતું હોય છે તો ધ્યાનથી સમજજો. બરાબર? આખું લિંકઅપ છે બધું. આ ફિગર છે ને ધ્યાનથી સમજો અને ફોકસ કરો. આ ફિગર શું કહેવા માંગે સમજો ધ્યાનથી. ઓકે. આ એક બેટરી છે. બરાબર છે? યુ કેન સી આ બેટરી. આ બેટરીના બે ટર્મિનલ દેખાય છે મને, પ્લસ અને માઇનસ. ફિલ કરો આ વસ્તુ, પ્લસ અને માઇનસ. રાઈટ? બે ટર્મિનલ છે, પ્લસ અને માઇનસ. ઓકે. હવે અહીંયા આ જે વાયર છે, આ વાયર પછી અહીંથી આટલો વાયર, ઇવન આ બધું જ છે ને, આ બધું વાયર જ છે એવું સમજો. આ બધું વાયર છે. ઓકે. આ બધું વાયર છે અને ગ્રીન કલરનો વાયર છે એટલે પ્યોર કન્ડક્ટિંગ વાયર. કેવો વાયર છે? પ્યોર કન્ડક્ટિંગ વાયર છે. લખી દઉં છું પ્યોર કન્ડક્ટિંગ વાયર. સમજ, થોડુંક હાર્ડ છે, સમજ ધ્યાનથી. આ ફિગર પરથી તમને ખબર પડશે, બાકી ખબર નહીં પડે. પ્યોર કન્ડક્ટિંગ વાયર. પ્યોર કન્ડક્ટિંગ વાયરનો મતલબ શું? એનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો આપણે લઈ લઈશું? એપ્રોક્સિમેટલી 0. આર યુ ગેટિંગ? શું કહું છું? કયો? આ દેખાયો તમને? ગ્રીન વાળું દેખાયું? ગ્રીન વાળું એની વાત કરું છું. ઇટ ઇઝ અ પ્યોર કન્ડક્ટિંગ વાયર. તો એપ્રોક્સિમેટલી રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે એનો? 0. બરાબર? એપ્રોક્સિમેટલી રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે એનો? 0 છે. ઓકે. અને આ જ વાયર છે ને, આઈ એમ માર્કિંગ ઇટ વિથ રેડ. અહીંથી A થી લઈને C દેખાયું? A થી C મતલબ આ. આ જે વાયર છે ને, આ વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ છે.
આ વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ 6, 0 નથી, रेजिस्टेंस 6, इट हैज सम रेजिस्टेंस, यहाँ से लेके ए से लेके सी तक जो भी वायर है उसका रेजिस्टेंस है, और ये वायर जो है ग्रीन इसका रेजिस्टेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0 ऐसा समझ लो आप। ठीक, समझने के लिए फिर आपको एकदम परफेक्टली समझाता हूँ, पहले समझने के लिए इससे आपको फील आएगी परफेक्टली, है ना, बराबर। ओके, अभी देखो यदि मैं एक चीज आपको पूछूं, जैसे कि देखो वी बैटरी, ये आपका प्योर वायर है, ग्रीन कलर वाला वायर है, और यहाँ पे रेड कलर का रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी का वोल्टेज से 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस भी मान लो कि 10 ओम का है, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा यहाँ से, कितना करंट फ्लो होगा यहाँ से, नहीं आइडिया आ रहा, ऐसे मत देखो, कुछ बोलो। 1 एम्पियर, सृष्टि नहीं आइडिया आ रहा, बाप रे, नहीं पढ़ते हो घर जाके, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू, अरे यार I इज इक्वल टू V बाय आर, तो उससे तो बड़े भयानक निकले जी, V इज इक्वल टू आर, I इज इक्वल टू Q बाय T, V इज इक्वल टू, ये सुना है, तो I इज इक्वल टू 10th का ही, वोल्टेज कितना बैटरी का, कितना रेजिस्टेंस है 10 बाय 10, समझ रहे हो, कितना करंट जाएगा यहाँ से, तो इतना सिंपल, आपको लॉजिक समझ में नहीं आया क्या, ये तो अच्छी बात नहीं, दिखा जाए तो आप खुद सोचो, फटाफट दिमाग में आना चाहिए, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो इतना समझ में आया पहले। ओके, अभी देखो 1 एम्पियर करंट जब यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा फ्लो करना, दिख रहा है ना, एरो दिख रहा है, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ तक जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आपको एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वोल्टेज भी कितना होगा, क्योंकि कोई भी I को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, समझ रहे हो। ओके, अभी आप कौन से पॉइंट पे आ गए, ये पॉइंट पे आ गए, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, मतलब अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पिक्चर में आ गई है ना, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस आगे जाओगे आप, आगे मतलब कि ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे ना आप ऐसे, तो लेंथ बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, R इज रो इनटू L अपॉन A, यहाँ से यहाँ जाओगे तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो R इंटू करंट करोगे तो क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज उतना ड्रॉप होता जाएगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जस्ट आप यहाँ पे कितना, ये पॉइंट पे कितना वोल्ट होगा 10 वोल्ट, कितना होगा ये पॉइंट पे कितना वोल्ट होगा, और यहाँ आते आते 9, यहाँ आते आते 8, फिर यहाँ सेंटर में 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 वोल्ट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना वोल्ट हो जाएगा 0, क्यों, बिकॉज उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वापस कुछ भी ड्रॉप होने वाला नहीं है, फील आ रही है क्या बोल रहे हो, तो जो भी ड्रॉप होगा ना वो कहाँ होगा, रेजिस्टेंस में ही होगा, वोल्टेज का जो भी ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस में ही होगा, इसको फिल करो आराम से, ये फिल करोगे तभी ये पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं कि आपको समझ में आए, यदि ये फिगर समझ में नहीं आई तो मुझे वापस पूछो, यदि ये फिगर समझ में ना आए तो मुझे वापस पूछो, क्योंकि ये फिगर समझ में आएगी तभी आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि आपको समझ में आए पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है। और दूसरा फिर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से समझ, और फील करना, यार फील करना होता है भाई, समझना मतलब फील करना होता है, और फील खुद को होती है तब पता चलता है कि खुद को हो गई, दूसरे को होती है तब पता नहीं चलता खुद को हुई, तो नहीं फील आ रही तो मुझे बताना, कम्युनिकेट करना, नहीं तो ठीक है। ओके,
देखो फिर से बोल रहा हूँ, समझना। मान लो कि ये बैटरी है प्लस, चलो थोड़ा सा अलग करते हैं इस बार। मान लो कि ये बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना लेटेस्ट से 10 वोल्ट है, समझना ध्यान से, 10 वोल्ट है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर वाला क्या है आपका, कंडक्टिंग वायर, क्या है ये, समझ रहे हो, कंडक्टिंग वायर। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 0। यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना, समझ रहे हो। और ये तो रजिस्टर का सिंबल है ना, ऐसा ऐसा, अदरवाइज वो भी दिखने में तो ऐसा ही होगा ना भाई, है ना, एक वायर ही होगा। और ये भी क्या है, एक यहाँ पे मतलब 2 रेजिस्टेंस लगाए हमने। इसको मान लो कि, इसको मान लो R2, मान लो कि रेजिस्टेंस है और ये है ना 3 ओम है। दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, वेरी गुड। फिर से दोनों इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, 10। इक्विवेलेंट कितना होगा इसका 10 ओम। कितना होगा इक्विवेलेंट इसका 10 ओम, सोचो, है ना, पता है ना सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, दोनों को ऐड करो। आंसर दो प्लीज, मुझे आंसर दो, ठीक है। 7 और 3 कितना 10, 10 ओम, ठीक है। मतलब कि दोनों को निकाल के लगाना हो तो इक्विवेलेंट कितना लगाएंगे हम, 10 ओम लगाएंगे। उसके बाद मैं यदि आपको पूछूं कि यहाँ से कितना करंट फ्लो का फाइंड करो, तो कितना करंट फ्लो का यहाँ से 1 एम्पियर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, तो I इज इक्वल टू, और यहाँ पे R की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको R इक्विवेलेंट 10। वोल्टेज कितना है, कितना होगा 10/10। चलो एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा अलग करते हैं। बैटरी का जो वोल्टेज है ना आपका, वो 10 की जगह पे लेते हैं 20, कितना लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा बट लेते हैं। तो कितना आएगा अभी करंट, मतलब यहाँ से कितना करंट जा रहा है भाई, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, समझना ध्यान से। ओके, अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये ग्रीन वायर दिख रहा है, ग्रीन वायर ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी रेजिस्टेंस है क्या, यहाँ से यहाँ तक, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो आप 0 को I से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 0, V इज इक्वल टू R के हिसाब से। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा नहीं, समझो, फिल करो और आंसर दो, है ना। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करेगा नहीं, क्यों, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस नहीं है, भले करंट फ्लो रहा है बट रेजिस्टेंस भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है ना, दोनों होना चाहिए, I भी होना चाहिए और I तो है यहाँ पे, बट यहाँ से यहाँ तक कोई भी R, बिकॉज ये परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना कितना रेजिस्टेंस है, करंट कितना आ रहा है, तो कितना वोल्टेज आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वेरी गुड, कितना आ जाएगा, कैसे पता चला, V इज इक्वल टू I R। कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है, फॉर्मूला कौन सा है, I कितना है, R कितना है 7 टू 7, मतलब कि यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा इसका क्रॉस में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे ड्रॉप होगा, क्या होगा धीरे धीरे। इसका मतलब क्या समझना, इसका मतलब समझना ध्यान से, आप फिल करना है इसको। देखो ये पॉइंट पे आएगा ना जब, तो कितना वोल्ट होगा, और आगे आगे गए तो कितना ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे आता है तो कितना बचेगा, फिल करो इस चीज को, आराम से फिल करो। ये फिल जब आप लाओगे ना तभी आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा, नहीं तो दुनिया का कोई टीचर आपको ये समझा नहीं पाएगा। पोटेंशियोमीटर समझ रहे हो, ये वाली फिगर कोई चांस ही नहीं है कि आपको समझ में, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो सोचो, इसके अगस्त में कितना वोल्ट आ गया अभी यहाँ पे 14 वोल्ट आ गया ना, कैसे आपने बताया मुझे V इज इक्वल टू I R, तो 14 वोल्ट तो वहां पे आ गया, शुरुआत में कितना था, तो 14 तो यहाँ पे इसमें आ गया मतलब कि ऐसे जाते थे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे आ जाते कितना हो जाएगा, सिर्फ फिल आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो V इज इक्वल टू I R होता है, बट R 0 है, तो I भले कितना भी हो, समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ड्रॉप नहीं होगा मतलब यदि यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, हाँ, क्योंकि कोई भी ड्रॉप हुआ, फिलहाल ही क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कितना आ गया,
समझ रहे हो? चलो अभी यहाँ से करंट कितना आएगा, करंट तो वही आएगा ना भाई, कितना आएगा करंट यहाँ से भी, और वही 2 एम्पियर कहाँ से पास होगा, तो 3 इंटू टू वी इज इक्वल टू आई आर। कितना है आई, कितना है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 6 ड्रॉप हो जाएगा। अब 6 ड्रॉप मतलब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे आते आते कितना आ जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि ये 0 ही वापस देखो यहाँ से आएगा ऐसे, बैटरी का नेगेटिव में। फिल आ गई, क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉप वाली फिल आ गई ना, ये फिल आ गई तो समझ लो कि आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया। कांग्रेचुलेशंस, है ना। पोटेंशियोमीटर में यही फिल के साथ आपको चलना है और कोई नहीं, है ना। एकदम सिंपल सी बात है, बराबर के नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अभी थोड़ा उल्टा समझते हैं, इसी फिगर को थोड़ा उल्टा समझते हैं, है ना। आपको इसी तरह से समझना है एज पर योर बुक, बट जेडबल नीट में हो सकता है कि उल्टा भी पूछे, और मेरे हिसाब से वो उल्टा सही लॉजिक है मेरे हिसाब से। अभी क्यों है वो सब मुझे पता है, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो बस ध्यान से खाली। मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करो, बैटरी के नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हो, तो जो बैटरी का नेगेटिव है उसको मैं मोस्टली क्या मान लेता हूँ, 0 वोल्ट, क्या मान लेता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ से स्टार्ट किया, अभी यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी ड्रॉप या कोई भी राइज होगा नहीं, दो चीज हो सकती है ना, या तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है या तो वोल्टेज, ये समझते हो ना, ड्रॉप होना मतलब कि वोल्टेज का कम होना, और राइज होना मतलब वोल्टेज का बढ़ना। तो यार आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से 0 से लेके ऐसे घूमने वाला हूँ ऐसे, समझ रहे हो, पास समझ रहे हो। तो 0 से +20 पे जाएंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि राइज करेगा। अरे फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, है ना। अभी समझो, ध्यान से समझो, देखो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको समझना है बस। यहाँ तक आते आते तो वोल्टेज कोई बढ़ा नहीं, फिर यहाँ पे आते आते यहाँ पे 0 था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। और अगर पता है करंट आपके सामने आया ना, आपके लूप में, आपका लूप अभी ये है देखो, और करंट सामने आया तो वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस होगा, याद करो आपको पता है। तो यहाँ से यहाँ पे आते आते कितना वोल्ट बढ़ गया, और अभी पूरा यहाँ पे 6 ही रहेगा, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ पे जाओगे आप तो और 14 बढ़ गया, कैसे, v इक्वल टू आर के हिसाब से, और यहाँ पे आते आते कितना हो गया, 20 हो गया, और वही 20 यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा। फिलहाल क्या बोल रहा हो कि नहीं आ रही, है ना। ओके चलो कॉन्ग्रेचुलेशन यदि आपको ये फिल आ रही है तो, क्योंकि ये फिल आ गई तो समझ लो कि आपको काफी हद तक समझ में आ गया ये चीज, बराबर। देखते हैं अभी कितना समझ में आया आपको। एक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ये कॉन्सेप्ट है बराबर, इसलिए इसके फिगर में यूज कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आपको समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ ना इसी तरह से आपको समझना है। यदि आपको ये चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस इजी कर देने हैं तो, समझ में ना आए तो मुझे फिर से एक बार पूछो, क्योंकि ये हार्ड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जो मैंने समझाया ना उसमें डाउट हो तो पूछ लो, अभी भी बोल रहा हूँ पूछ लो, रिपीट करो एक बार की चलेगा, दिमाग में आ गया एटलीस्ट। चलो अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है। देखो अभी समझना, आगे करते हैं। देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिफोर वी गो इन द पोटेंशियोमीटर, वो समझते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी है, प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बैटरी है, प्लस माइनस, ठीक है। और इसको ऐसे मैंने वायर से कनेक्ट किया, यहाँ पे वायर है और यहाँ पे एमीटर है, क्या है, यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे भी एक वायर, और मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया, मान लो, ठीक है। मैंने मान लो रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये बैटरी 10 वोल्ट की और ये बैटरी भी 10 वोल्ट की। क्वेश्चन समझा ध्यान से, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही बताने की, करंट जो होगा ना, करंट एमीटर मतलब जो दिखाए ना करंट, एमीटर दिखाएगा ना करंट आपको, वो कितना दिखाएगा, ऑप्शन ए 0 एम्पियर, ऑप्शन 2 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी 1 एम्पियर। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। फिगर ये है, बराबर। क्वेश्चन समझ में आया, फिगर समझ में आई, तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, डी 1 एम्पियर। ओके, भले ही गलत हो, और हर एक आंसर के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, आराम से सोचो, आपको लग रहा है डी 1 एम्पियर, लॉजिक रेडी रखना, कुछ ना कुछ लॉजिक, भले ही गलत भी हो, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। एनीवन एल्स?
किसी को बोलना है तो बोलना भाई। 2 एम्पियर। ओके, आपको क्या लग रहा है? प्योर नहीं लग रहा, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कुछ? वंशिका 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। चलो देखो, इसका आंसर आएगा 0 एम्पियर। कितना आएगा? ठीक है ना? क्यों 0 आएगा समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये बैटरी दिख रही है, बैटरी है, ये बैटरी क्या जाती है, करंट कैसे फ्लो हो, ऐसे फ्लो। देखो प्लस से निकलेगा करंट, और ये बैटरी क्या जाती है, करंट ऐसे फ्लो। सोचो, और दोनों की जो चाह है, जो फोर्स है, मतलब वो कितना है, सेम है। देखो समझ रहे हो? तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई, कैंसल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हो कि नहीं समझ रहे हो? सिंपल है ना। ये बैटरी आती है कि करंट यहां से ऐसे करके ऐसा आए, और कितने वोल्ट, कितनी उसकी इच्छा कितनी है, ऐसे जाए देने की 10 वोल्ट की इच्छा है, कितनी है ना? सेम ये क्या चाहती है, करंट, ये बैटरी आती है, करंट ऐसे फ्लो 10 वोल्ट से, दोनों का पावर से, वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल सेम है दोनों का, तो क्या होगा, कहीं पे फ्लो होगा। समझ रहे हो ना? तो कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पे, फील आ रही है क्या बोल रहा हूँ? आंसर भले नहीं आया बट फील आ रही है। ठीक है, ओके, समझना इसको। तो इस तरह का जब जब दो बैटरी को कनेक्ट करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं बैटरीज आर कनेक्टेड एंटी पैरेलली। बट मैं थोड़ा इतना ज्यादा क्यों लिख रहा हूँ, एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। क्या एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, समझ रहे हो? ये एंटी पैरेलल, क्या एंटी, एंटी समझते हो ना, एक दूसरे का अपोज करने का, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ये? उससे उल्टा जस्ट ये तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि एक फिगर में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे एमीटर सब कुछ सेम है बट थोड़ा सा अलग है, माइनस प्लस, समझ रहे हो ये? और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कितना का, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है। अगेन वही 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन भी वही है। कौन से 4 ऑप्शन है? 0 2 5 1, 0 2 5 1। बोलो अभी क्या लग रहा है आंसर आपको, समझ में आया? क्लियर हो गया? 2 एम्पियर क्यों आएगा, क्यों? बिकॉज देखो ये प्लस जो है ना, ये क्या चाहता है, करंट कैसे फ्लो करे भाई, करंट ऐसे फ्लो करे, और मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो? और ये ऊपर वाली बैटरी है, उसका भी क्या चाहता है, प्लस, ऐसे ही फ्लो करे करंट। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बैटरी एक ही जैसा चाहती है। जस्ट लाइक मुझे ये टेबल को इस तरफ ले जाना है, तो मैं भी फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, और मेरा पार्टनर जो वो भी इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, देखो आप, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, दोनों 20 हो जाएगा, सीधी बात है ना भाई। तो ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा आपका, 20। रेजिस्टेंस कितना ओवरऑल, तो 20/10 करो, कितना आएगा, 2 एम्पियर। आपको पता है फॉर्मूला, V इक्वल टू आई इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन। समझ में आया क्या क्या मैंने? तो इस केस में आंसर क्या आएगा? और इस वाले में क्या बोला था, एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। सिंपल है कि नहीं है ना? और ये आपके सिलेबस में भी है, डोंट वरी, आपके सिलेबस में है, बीच में एक है, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ऐसा टॉपिक है ना? तो क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, फिल करना है कॉन्सेप्ट को, सर्किट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी ये सारे फंडा में सर्किट में लगाने वाले हैं। ये दोनों फंडा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, वोल्टेज ड्रॉप वाली और या वोल्टेज राइज वाली, वो क्लियर है ना? आई होप क्लियर है। चलो उसी सर्किट को थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, उसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना, उसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और फिर हम पोटेंशियोमीटर में समझेंगे, तो आपको लगेगा पोटेंशियोमीटर तो बहुत आसान है ना? ये 3 कॉन्सेप्ट का, इसीलिए दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को पोटेंशियोमीटर समझने में। देखो प्लस माइनस, मान लो ये क्या है, आपकी बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज मान लो कि 100 वोल्ट, कितना है, बराबर। और आपको पता है कि जब जब मैं ग्रीन कलर यूज करूँ, कौन सा कलर, उसका मतलब क्या भाई, समझना है आपको, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस 0 है। ऑलमोस्ट, देखो कभी भी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 हो सकता नहीं है, आपको पता है ना? ये कोई भी 100% हो सकता है भाई, सही नहीं हो सकता, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हर एक में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होता ही है।
नो वन इज परफेक्ट, राइट? ओके, तो देखो, और यहाँ पे जो रेड कलर का वायर दिख रहा है आपको भी दिखेगा अभी, इसका रेजिस्टेंस है, रेड वाले का रेजिस्टेंस है ना? और बैटरी कितने की है यहाँ पे? 100 वोल्ट की बैटरी है। समझ ना, मजा आएगा। देखो, तो मुझे एक चीज कंफर्म पता है, मुझे एक चीज कंफर्म पता है कि यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो यहाँ आते आते ही पूरा वोल्टेज क्या हो जाने वाला है? ड्रॉप हो जाने वाला है, ड्रॉप हो जाने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, ऐसे जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसे जाएंगे तो वोल्टेज राइज होगा। बट जो भी होने वाला है वो रेड सेक्शन में होने वाला है, क्यों? बिकॉज उसी का रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो ना? पक्का एकदम पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी इसमें भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत में पड़ जाओगे, आप सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बराबर, जो भी होने वाला है वो रेड में होने वाला है, क्योंकि उसी का रेजिस्टेंस है। क्योंकि आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो वोल्टेज लाने के लिए रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए। यदि यही जीरो हो गया तो वोल्टेज जीरो ही हो जाएगा, करंट चाहे कितना भी हो, है ना? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बस यहाँ पे यही चीज होने वाली है यहाँ पे, तो समझना, ध्यान से समझना। देखो 2 मिनट के लिए मान लो, 2 मिनट के लिए मान लो कि यहां से लेके इसकी जो लेंथ है, यहां से लेके इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ वायर की लेंथ भी होगी एक, और से वो है आपकी 100 मीटर। कितनी है ये? सॉरी 100, चलो सेंटीमीटर, 100 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, 100 सेंटीमीटर, क्या 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है? ओके, और ये देखो वायर, देखो ध्यान से देखो, ये वायर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसका एरिया कैसा है? हर जगह पे सेम एरिया, समझते हो ना? क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे जैसे कि ये है मेरे पास, उसको ऐसे काटा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ना, वो हर जगह पे कैसा है? सेम है, एरिया सेम है, और मटेरियल भी एक है। मटेरियल सेम होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टिविटी से प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जस्ट लाइक कॉपर एक मटेरियल तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, है ना? तो मटेरियल तो एक ही है ना। ये मान लो कि ये मटेरियल 2 मिनट के लिए मान लो कि मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपर का मटेरियल, कौन सा? हालांकि कॉपर का होगा नहीं, निक्रोम वायर होगा, कौन सा होता है? मैं वही लिखता हूँ, चलो ना, है ना, जो है वही लिखता हूँ, ठीक है? रियलिटी में जो होता है निक्रोम, है ना? तो रो और ए कैसा है इसके लिए? कांस्टेंट है। समझ में आया कांस्टेंट क्यों है? समझ में आया? एक एक चीज समझ में आ रही है? रो की कांस्टेंट है बिकॉज मटेरियल एक ही है, और एक मटेरियल का जो रो होता है वो बदलता नहीं। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या? देखो फिल करो, वो भी सेम है ना? एल सेम है, एल तो सर बदल गई ना, जैसे जैसे आप आगे जाओगे लेंथ क्या होगी? बदलेगी, है ना? समझ रहे हो? मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बोला है, तो मान लो कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो लेंथ तो बदलेगी, जैसे आप आगे जाओगे लेंथ क्या होगी? बदलेगी, है ना? तो आपको एक फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना? अभी ये फॉर्मूला के हिसाब से देखो, इस पर्टिकुलर निक्रोम वायर के लिए रो कैसा है उसका, ए कैसा है उसका, तो कहना है इसे R प्रोपोर्शनल टू एल, टेक रो एंड ए एज कांस्टेंट, तो R प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ के ऊपर। समझ रहे हो? जैसे जैसे देखो, मान लो कि आपने यहाँ से इतनी लेंथ तक किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक किया है आप, तो रेजिस्टेंस कम होगा। आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले दो, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। फिल करो, फिर पक्का आ रही है फिल एकदम? आई होप कि आ रही होगी। चलो यदि आ रही है तो देखो, मैं अभी इसमें और इसको ऑपरेशन करता हूँ एकदम अच्छे से, पूरा ऑपरेशन ही कर डाल दे इसका, ठीक है? देखो यहाँ पे मान लो 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या होगा? समझ रहे हो ना? अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना होगा भाई? 10 होगा, यहाँ सेंटर में यहाँ पे 10 होगा, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे समझ में आया क्या किया मैंने? ये सेंटीमीटर सब मान लो, ठीक है? ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो कि ये पूरा जो यहाँ से ये रेजिस्टेंस है ना क्रोम का, एक वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? इसका तो होगा, रेड है ना ये तो इसका रेजिस्टेंस मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 200 ओम। कितना अज्यूम कर रहा हूँ? पूरे का पूरे का मतलब कहाँ से कहाँ तक का? ए से स्टार्ट करके बी तक का, पूरे का कितना है? फिर से आराम से फिल करो इसको, ए से लेके बी तक का जो भी वायर है आपका, जो कि किसका बना है? निक्रोम का, जिसका रेजिस्टेंस है, और वो कितना है? तो मेरा क्वेश्चन, 0 से लेकर 50 तक का रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 ओम।
है ना। 0 से लेकर 20 तक का कितना होगा? 0 से 20 का कितना होगा? 40 ओम। कितना होगा? 40 ओम। देखो ना कितना कच्चा मैथ है आपका, नहीं है ना। बका આવું બોલવાનો સવાલ જ નથી, તમે છોડો બરાબર કે નહીં? ઓકે ठीक है, बस आपका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक। अभी आई एम प्राउड ऑफ यू। तो भाई मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी उसमें क्या मैं टॉन्ट थोड़ी मार रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो देखो समझना, ओके। फिर से और मैं पूछूंगा, देखो क्योंकि यही फील है पोटेंशियोमीटर की, फील ही है पोटेंशियोमीटर की, फील ही है। इसके बाद आपको पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन आएंगे यदि आपने समझ लिया ना तो। पूरा लेंथ कितनी है पूरी? लेंथ लेंथ फील करो, फोकस रखो, ठीक है। बराबर 100 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है। कितना रेजिस्टेंस है? तो 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर की जो लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? लेंथ आती तो रेजिस्टेंस भी आधा। दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि लेंथ 0 से लेके 150 तक है, कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी एक मिनट, यहाँ से लेकर 75 तक, 75 यहाँ पे आएगा ना, तो उतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ 150 कितना होगा? समझ रहे हो? मैं स्टूडेंट होगा जल्दी आ जाएगा, बायो हो तो आप ऐसा लिखो, क्या लिखो कि भाई 100 सेंटीमीटर लेंथ है तो कितना रेजिस्टेंस है, तो मैंने कितने लेंथ अज्यूम की है, मतलब आपको पूछा है इस पे कितना है ना, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ये तो आता है ना। ये नहीं आता तो फिर 10th की बैच स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ओके 75 टू समझ रहे हो ये? पक्का ना? तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा रेजिस्टेंस? 150 बराबर। फिलहाल तो यही तो इसका मतलब होता है भाई, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा? और एक क्वेश्चन ट्विस्ट लाते हैं ना कहानी में, है ना, लाते हैं ना। नीट सर, हम तो नीट करेंगे सर, हम तो जेडबल ही करेंगे, करो चलो देखो। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है क्वेश्चन, 40 ओम। कितना होगा? 40 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ओके। अभी देखो एकदम सिंपल चीज करते हैं, कैसे समझ में आया 40 की नहीं आया? बिकॉज ये लेंथ तो भाई 20 हुई ना, 20 से 40 मतलब लेंथ कितनी हुई? 20 हुई ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? नो पक्का ना? नाथ में तो पूछना, ठीक है ना। लेंथ लिखना लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तो लेंथ तो ये 20 सेंटीमीटर है ना भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो? चलिए, तो ये सब करने में इजी होना, आसानी होना, इसलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट का। क्या मैंने आपको एक बार समझाया था 11th में, ग्रेडियंट एक वर्ड आएगा आपको, मुझे तो याद है, आपको पता नहीं कि याद है कि नहीं। ग्रेडियंट ऐसा बताया था मैंने, मैंने ये भी बोला था उस समय कि अभी ये ग्रेडियंट है, कोई था मुझे पता नहीं कौन सा था ग्रेडियंट, 12th में पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। आई टोल्ड यू दिस, मुझे याद है, ठीक है। चलो एक वही टर्म समझ लेते हैं अभी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पोटेंशियल, मुझे क्लियर याद है, मैंने उस समय बताया था कि आपको रिमेंबर दिस वर्ड ग्रेडियंट याद रखना, मैंने बताया था, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब यही होगा। अभी देखो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ समझ। मान लो कि 100 सेंटीमीटर आप आगे बढ़े, कितने आगे बढ़े आप? तो आपका एक्चुअली, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, थोड़ा सा अभी वोल्टेज के बारे में मैंने नहीं बताया आपको, चलो इसका बताता हूँ, समझना, एक मिनट बता रहा हूँ पोटेंशियल का मतलब समझा। अभी ये कितना वोल्ट है, यहाँ पे कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कोई भी वोल्ट ड्रॉप होगा? क्यों नहीं होगा? रेजिस्टेंस ही नहीं है भाई, है ना। जो भी ड्रॉप होने की शुरुआत होगी ना, वो कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या होगा? ग्रेजुअली कम होगा, समझ रहे हो? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वापस 0 ही रखना है ना भाई। फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो कैन यू से कि ये दो पॉइंट जो है ना, ये दो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक ए और बी, मतलब उसका वी ए बी, क्या वी ए बी मतलब वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, वो कितना वोल्टेज होगा? डिफरेंस कितना होगा उसके बीच का? सोचो ना, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट पे कितना वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई ड्रॉप होने वाला नहीं है। और ये पॉइंट पे कितना वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे कोई ड्रॉप होने वाला, समझ रहे हो? तो ये दो पॉइंट पे कितना वोल्टेज डिफरेंस है? और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, समझ आ गया।
यदि मैं 100 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा हूँ ना, ऐसे वहां से स्टार्ट करके यहाँ पे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे, कितना आगे बढ़ रहा हूँ, तो पूरा कितना वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, पूरा कितना वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, 100 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं मान लो कि 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ू, कितना आगे बढ़ू तो कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, तो दिस इंटू दिस अपॉन कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, मतलब 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। और ये जो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर मिला ना आपको, इसी चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पर यूनिट डिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल राइज हुआ। अभी सीधी बात है भाई, आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ से ऐसे होगा तो पोटेंशियल, सोचो यार, अभी ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, मैंने पहले ही बोला, ये तो करंट के डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट से उल्टा जाएगा तो पोटेंशियल राइज होगा। आपको फील के साथ मैंने बताया है ये, ठीक है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होगा, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो मुझे बताओ आप, देखो मान लो कि ये पॉइंट सी है, दिख रहा है ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट मान लो कि डी है, कौन सा है ये डी, तो कैन यू से वीसीडी कितना होगा, वीसीडी मतलब कि वोल्टेज बिटवीन सी एंड डी कितना होगा आपके हिसाब से? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ट्राई करो। एक्सीलेंट, कितना होगा? 50 वोल्ट। कौन बोला आंसर? 50, सीधी बात है, फिर आ जाना चाहिए भाई अभी इतना समझाने के बाद, ठीक है, बराबर। कैसे आया 50 आपका आंसर, क्या सोचा आपने? तो देखो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, कितना होगा ये पॉइंट का वोल्टेज? नहीं होगा, वोल्टेज कितना होगा इस पॉइंट का? 90। फिल करो, आ रहा मजा आएगा। देखो ये इस पॉइंट का 100, तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, बोलो आगे, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। फिल आ रही कि नहीं आ रही? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का? ठीक है। और डी पॉइंट का कितना होगा? 40 वोल्ट होगा, सोचो, है ना? डिफरेंस ले लो, 90 माइनस 40 कितना आएगा? तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? नहीं आया समझ में? आया? वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बराबर कि नहीं? ठीक है, बराबर, ठीक है, समझ में आ गया ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये 2-3 चीज आपने समझ लेना अभी, तो फिर पोटेंशियोमीटर में यही है और कुछ नहीं। ये सबका क्या करना है आपको? मर्ज कर देना है। क्या कर देना है? सबको मर्ज कर देना है, और आपका पोटेंशियोमीटर रेडी कॉन्सेप्ट के साथ। समझ रहे हो? इस 2-3 चीज को आपको मर्ज कर देना है एक ही चीज में, बस, और कुछ नहीं करना है। देखते चलो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी समझ लेते चलो, ठीक है। चलो देखो समझना, और एक क्वेश्चन फटाफट। मान लो कि ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, कितना होगा वी ई एफ? कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि भाई पर सेंटीमीटर 1 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये कितना डिफरेंस है सेंटीमीटर में? 20 सेंटीमीटर है ना, तो कितना होगा? 20 वोल्ट का डिफरेंस होगा इसमें, है ना? ऐसे भी सोच सकते हो। और डीप में सोचना हो तो जैसे कि मैंने बताया, ये ई पॉइंट दिख रहा है, ई पॉइंट कितना होगा उसका वोल्टेज? तो देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे 90, 80 और यहाँ पे 70 वोल्ट होगा, फिर 60 और ये होगा, तो डिफरेंस कितना आ गया? कैसे? 70 माइनस 50। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गए ना अंदर, गए ना? सिंपल लगा कि नहीं लगा भाई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट तो बैंड बच जाएगी आपकी, ठीक है ना? इतना डीप में समझना पड़ता है इसको, बराबर। आई होप क्लियर हो गया ये, चल ठीक है। तो नाउ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस फिगर, नाउ इतना समझने के बाद, ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले तो सर ये पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ती है सर? ये पोटेंशियोमीटर है क्या बेसिकली? क्यों सर, क्यों? क्यों क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम पोटेंशियोमीटर? पता है किसी को क्यों पढ़ रहे हैं? मार्क्स लाने के लिए, है ना? मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, एक तो बराबर कि नहीं? ओके, वो तो सही बात है, वो तो आप भावनाओं में बह गए, ठीक है, बट अभी क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी इसलिए पढ़ रहे हैं हम ताकि बैटरी का ईएमएफ पता लगे। क्या पता लगे? समझना, मैंने आपको बताया था उसमें, देखो पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका यूज, तो क्या है उसका यूज? टू नो ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, और टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, डिटरमाइन और नो, ठीक है। दे बोलोगे सर बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है ना,
तो ले आओ ना सर, वोल्ट मीटर ले आओ, क्या ले आओ। बट मैंने बताया था दिक्कत याद करो उसमें, यदि आपने उस दिन शाम को सेशन अटेंड किया था, ठीक है, मैंने बताया था याद करो। जैसे कि मान लो कि ये सेल है, याद आया कुछ, ये सेल, ये प्लस है और ये, और मान लो कि आपको इसका EM मेजर करना है, क्या मेजर करना है, और आपने यहाँ पे ऐसे करके वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, याद करो। तो जैसे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे थोड़ा सा करंट पास होगा, और वही करंट अंदर से ही पास होगा, तो अंदर तो R होता है, तो आपको पता है कि जो E होगा उसमें से IR ड्रॉप हो जाएगा, और जो बाहर अवेलेबल होगा वो V होगा, मतलब यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज आएगा, कभी भी EMF आएगा नहीं। आर रिगार्डिंग ऐसी दिक्कत होती थी वहां पे, याद करो। मतलब ये आइडिया जो है वो तो टोटली रॉन्ग है टू मेजर EMF। तो कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़, और वो जुगाड़ जो है वही कौन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फिल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो व्हाट डज अ पोटेंशियोमीटर डू, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल। EMF मेजर करना, और मैंने आपको उस समय बताया था, याद करो चीज, यदि मुझे ये मेजर करना है, ये मतलब कौन, ये EMF मुझे मेजर करना है, तो समहाउ क्या होना चाहिए, ये दोनों में से कोई भी टर्म जीरो होना, या तो करंट या तो R। बट मैंने बताया था आपको R कभी जीरो हो सकता नहीं, याद करो। यदि ऐसा हो जाता तो दिक्कत ही सॉल्व हो जाती, बट R कैन नेवर बी इक्वल टू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I जीरो करना पड़ेगा, करंट क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और वो करंट जीरो कैसे करेंगे याद करो ये आंसर, समझ, बैटरी तो है, वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है, बट करंट, ऐसा कुछ जुगाड़ यहाँ पर करने वाले हैं, समझ रहे हो, तो वो समझ में आएगा क्या करने वाले, समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको भी थोड़ा थोड़ा फील आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है हमको यहाँ बराबर, ये जो है ना आपका, ये कितना करना है आपको, जीरो कर देना है, क्या जीरो कर देना है, हाँ करंट जीरो कर देना है। यदि आपने ये जीरो कर दिया ना, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं पाएगा, ये जीरो कर दिया तो ये टर्म चला गया, तो फिर आपका V होगा, वही क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। बोलो फिल करो इसको, आराम से फिल करो। और ये सारी चीज हम किससे करने वाले, विद द हेल्प ऑफ, तो ये इसका यूज है, कैसे करने वाले बस अभी वही समझना बाकी है। वैसे पहले सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलो एक बार रिकॉल करते हैं, फिर समझते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। वो तो सिर्फ सर्किट समझनी है, वो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, यदि आपके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलो एक बार समझते हैं। देखो पहले मैंने क्या पूछा आपको, क्वेश्चन ही यहाँ पे देखो, दोनों सेल को देखो कैसे कनेक्ट है, दोनों सेल एंटी पैरेलल है ना, दो इक्वल सेल है और वो कनेक्टेड है, एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू इक्वल सेल्स, समझ रहे हो ये, ठीक है। एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ इक्वल सेल्स, देखो ध्यान से देखो, आराम से देखो इसको, ठीक है। तो करंट जीरो होगा, इसमें देखो ये क्या है आपका पैरेलल कनेक्शन, क्या है ये, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे फ्लो फ्लो में बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू इक्वल सेल्स, समझ रहे हो, यहां तक समझ रहे हो, पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू इक्वल सेल्स। ओके, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फील आनी चाहिए पूरी, कहाँ से कहाँ जाएंगे तो क्या होगा, है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होता है, मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होने वाला नहीं, और यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ से पिक्चर में आया, और ये सब पता होना चाहिए जो भी मैंने बताया वो सब, है ना, बराबर। चलिए इतना पता है तो आप कर सकते हो ये पोटेंशियोमीटर। चलो एक बार फिर से मैं फिगर ले आता हूँ, वो भी ओके। तो ये फिगर में देखो, अंदर जो भी फिगर दिया, मैं पहले स्टार्टिंग में जो बता रहा हूँ ना, वो उस तरह से आप याद करोगे, फिर लास्ट में हम करेक्ट कर देंगे उसको, बराबर। स्टार्टिंग में आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद करोगे आप। मैं क्या बता रहा हूँ देखो, समझना, मैं बता रहा हूँ कि ये बैटरी का प्लस है, और यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मान लो, और नहीं है, सच में नहीं है, मान लो, ठीक है। और ऐसे यहाँ से ये और ये भी रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो,